जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। सभी लोग गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Parasarthi Gaura Nitai Sita Ram Lakshman Hanuman ki Jai Jaya Jaya Prabhupada 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 Pitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Sai Gaur Premanande Jayo Vishnupad Paramhansa Parivajakacarya Ashtottar Saty's Divine Grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON BBT Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Shri Shri Radha Parthasarthi Bhagavan ki Shri Shri Lalita Vishakha ki Shri Shri Gaur Nitai Panchatattva ki Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman ki Jagat Guru Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki Nitai Gaur Premanande all glories assembled devotees Hare Krishna all glories assembled devotees Hare Krishna all glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurnamilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन इस्कॉन की स्थापना हुई थी, तो इस्कॉन स्थापना दिवस कह सकते हैं। न्यूयॉर्क में हुआ था। हालांकि प्रभुपाद जी कई समय से कई वर्षों से प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन अमेरिका में जब पहुंचे और वहां पर 1 साल के संघर्ष के बाद उन्होंने स्थापना की इस्कॉन की। तो आज ही वो दिवस है, तो इसलिए हम लीलामृत से थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना की और क्या क्या वहाँ पर हुआ। तो हम देखते हैं जब लीलामृत पढ़ते हैं, हालांकि लीलामृत में पूरा विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ का आप अनुभव करेंगे कि
जो बाउरी स्ट्रीट में जो हुआ वो अद्भुत कार्य था, ऐसा कभी देखा नहीं, कभी किसी ने सुना नहीं। वो कार्य हुआ, क्या हुआ उसमें? ऐसा बताया जाता है कि लोअर ईस्ट साइड जो स्थान था, लोअर ईस्ट साइड, वो स्थान बताते हैं उसका इतिहास जो है न्यूयॉर्क के समय का है। न्यूयॉर्क जब से बना तब से ही वो लोअर ईस्ट साइड है, और वो स्थान जहाँ पर धीरे धीरे बस्तियां बनने लगी, झुग्गी झोपड़ियां बनने लगी, और लोग वहाँ पर बाहर के देश के लोग आकर रहने लगे। तो वो स्थान बाद में ईस्ट विलेज के नाम से फेमस हो गया, और वहाँ एक पत्रिका भी आती थी, ईस्ट विलेज कहते थे, क्योंकि ये लगभग श्रील प्रभुपाद जी के आने के 300 वर्ष पुराना का इतिहास है, जहाँ पर पीटर स्टूवेंट्स के जो जागीर का अंग था, एक स्थान था। तो कभी कभी लोग उसको, आपने सुना होगा टॉमसन स्क्वायर पार्क, जहाँ पर कीर्तन किया था श्रील प्रभुपाद जी ने, आज भी वहाँ पर लिखा गया है इस्कॉन यहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो वो स्थान जो तो स्क्वायर, जो टॉमसन स्क्वायर पार्क था, वो स्टूवेंट्स दलदल कहा जाता था। वो स्थान जो था, मतलब उसका इतिहास पुराना है और उस समय भी फेमस था, पर इतना नहीं था, क्योंकि 1840 में लगभग वो स्थान जो था झुग्गी झोपड़ियों का स्थल बन गया। जैसे कि आप देखते हैं भारत में भी, बड़े बड़े राज्यों में भी, या आप देखते हैं कि एक लाख सिटी में भी, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, यहाँ पर भी झुग्गी झोपड़ियाँ मिलती है। तो वैसे ही न्यूयॉर्क में भी वो स्थान में ऐसा स्थान था जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ थी 1840 से, है ना। और धीरे धीरे वहाँ पर यहूदी आने लगे, बाहर से लोग आने लगे। ऐसे स्थान जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ होती है तो लोग आके रहने लगते हैं, तो पता नहीं चलता लोगों को कि कौन कहाँ से आया, कहाँ से रह रहा है। और 1900 के आसपास यहूदी वहाँ के रहने लगे, और 1950 में पोर्ट्रिको वासी जो है वो आने लगे, पोलो, यूक्रेन, ये सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होने लगे अलग अलग देशों से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ से इस्कॉन प्रारंभ हुआ है, तो उस स्थान के बारे में उसका इतिहास समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो स्थान हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी लीलामृत पढ़ते हैं भक्त, तो वर्णन आता है कि ऐसा हो रहा था, साइड में एक लैंप लगा था, एक बगल में मशीन थी, यहाँ पर एक दुकान थी। तो हमें लगता है ये सब क्यों लिखा गया लीलामृत में, है ना। सीधा सीधा प्रभुपाद जी के बारे में क्यों नहीं लिखा गया। ये गाड़ियाँ चरमरा रही थी, रोड नीचे की ओर जा रहा था, फिर ऊपर बिल्डिंग थी, पास में पहाड़ी थी। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो स्थान जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस्कॉन के भक्तों के लिए। तो इस्कॉन के भक्त, अभी हम तो कभी जा नहीं पाते हैं उस स्थान में जहाँ पर इस्कॉन की स्थापना हुई थी, लेकिन जब कभी जाएंगे, या वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अमेरिकन हैं या न्यूयॉर्क के वासी, जब उस स्थान को पढ़ते हैं तो लगता है ये वही स्थान है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी रहा करते थे, तो उसका अपनापन बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के और जीवन में इस प्रकार लिखा गया है। तो आज भी उस स्थान को रिसर्च करा जा रहा है, कई यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है कि वो स्थान जो था लोअर ईस्ट साइड, वहाँ पर इतने लोग अचानक से बाहर से आए कुछ वर्षों में और झुग्गी झोपड़ियाँ बनाए, और कुछ समय के बाद वो अचानक से कहाँ चले गए, सब परिवर्तन हो गया, गायब हो गया, स्थान बिल्कुल चेंज हो गया। तो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे कि लीलामृत में लिखा गया है कि ज्यादातर उपेक्षित युवा जो थे, वो जो संसार से परेशान हो चुके थे, वो लोग यहाँ पर आते थे क्योंकि वहाँ का किराया कम था और इजीली कहीं भी रह सकते थे। झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, चौल होता है जैसे, चौल जैसा रहते थे। और खासकर जो वहाँ के वासी थे, अमेरिकन जो थे, वो लोग वियतनाम पर जो नियम लागू किया गया था अमेरिका के द्वारा, उससे वो बड़े दुखी थे। और दुखी होकर उन्होंने क्या किया, वो एक प्रकार से विद्रोह करने लगे, है ना, कि हम युवा पीढ़ी हैं, अगर युवा पीढ़ी अगर कुछ नहीं करेगी तो देश खराब हो जाएगा। तो पढ़े लिखे लोग जो करने लगे, घर माँ बाप को छोड़ दिया, तो घर बार छोड़ गए और बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी धन के वो आ गए, बावरी में आ गए, यहाँ पर लोअर ईस्ट साइड में आ गए। और वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो चौल के बरामदे में रहते, सड़क पर सोते लोग, कोई कुछ बोलता नहीं क्योंकि वैसे ही सब जानते थे कि परेशान है लोग। तो ऐसे धीरे धीरे वहाँ पर लोग इकट्ठे होने लगे और इनको समझाने के लिए पुलिस भी आई। पुलिस काफ़ी अच्छे से समझाई कि देखो, पुलिस अपने दोनों तरीके से समझाती है, मारपीट की भी समझाती है और ऐसे भी समझाती है कि छोड़ दो जगह, ये अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, पर फिर भी वो लगे रहे। कई सामाजिक कल्याणकर्ता भी आए
उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, उनसे भी नहीं माने। कई लोग परामर्श देने के लिए परामर्शकर्ता भी आए, उनसे भी कोई नहीं माने। इस प्रकार कोई भी तरीका अपनाया गया तो वो लोग स्थान से हिले नहीं, और वो जो भी उनका विद्रोह था, विद्रोह करते हुए स्थान पर रहने लगे। तो श्रील प्रभुपाद जी जब आए लोअर सेट में, तो प्रभुपाद जी को ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब होने वाला है। प्रभुपाद जी की ऐसा ध्यान में था कि मुझे बहुत बड़ा कार्य करना है अपने गुरु के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पर होगा। कि प्रभुपाद जी हर जगह ट्राई करते हुए थे, पेंसिल्वेनिया में गए, आगे अलग अलग स्थानों में होते हुए जहाँ पहुँचे, तो प्रभुपाद जी ने कभी यूथ की तरफ ध्यान तो था, पर वैसा ध्यान नहीं था कि यूथ जो है वो यूथ प्रीचिंग करने पर ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, ऐसा ध्यान नहीं था। लीलामृत में इसका वर्णन भी आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लोअर ईस्ट साइड में आने के पहले कोई योजना भी नहीं बनाई। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शायद ये कृष्ण की इच्छा थी, नहीं तो मुझे यहाँ क्यों ले आते। जो झांसी में नहीं हो पाया, जो अपटाउन में नहीं हो पाया, जो पेंसिल्वेनिया में नहीं हो पाया, जो कि भारत में भी नहीं हो पाया, वो काम यहाँ पर क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि भगवान यहाँ प्लानिंग करके ले आए थे। और जो रिसर्च का विषय बना हुआ है कि 300 वर्ष से इस स्थान पर अलग अलग जगह से आकर लोग रह रहे थे, वो क्यों आ रहे थे? ऐसा लगता था कि ये सब श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद हैं जो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर, अलग अलग स्थान पर ब्रह्मांड में जाकर वो प्रचार करने में मदद करते हैं। तो वो शायद इकट्ठा हो रहे थे लगता है, ताकि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आएंगे, उनके साथ वो जुड़कर प्रचार के कार्य में जुड़ेंगे। जैसे कि कई बार ऐसा सुनने मिलता है श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों से कि वो उनकी क्या इच्छा रह गई है, कि वो क्या चाहते हैं जीवन में। तो बोलते हैं हमें, हमारी कोई इच्छा नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी किसी ब्रह्मांड में अगर प्रचार कर रहे हैं तो हम भी वहां जाकर प्रचार करेंगे। तो ये उनका समर्पण है श्रील प्रभुपाद जी के लिए। तो शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा, प्रभुपाद जी किसी ब्रह्मांड में प्रचार करके आए होंगे, तो यहाँ भी जब प्रचार कर रहे होते, इसलिए सब लोग लोअर ईस्ट साइड में जाकर इकट्ठे हो गए ये प्रचारक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये देश उनके लिए पराया था, यहाँ पर कोई भी अपना नहीं था, और यहाँ तक कि ऐसे स्थान पर कोई पूर्ववर्ती आचार्य भी रहकर यहाँ प्रचार नहीं किए जिस स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी कर रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को अपने गुरु की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा थी, हरिनाम पर पूर्ण श्रद्धा थी। उन्हें जैसे अपने भजन में लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे भगवान आप यह क्यों लेकर आ रहे हैं, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जैसा नाच नचाएंगे मैं नाचूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे नहीं पता था कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है, लेकिन प्रभुपाद जी को इतना पता था कि नाम में शक्ति है, हरिनाम में शक्ति है, गुरु के वाणी में शक्ति है। तो इसलिए वो स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी आ गए। तो हुआ क्या कि जब प्रभुपाद जी की, मैं पूरा तो नहीं लीलामृत हम बता सकते हैं, तो मैं उस स्थान से प्रारंभ करूंगा जब थोड़ा सा इस टाइप का स्थिति बन चुका है। वहां पर हावर्ड जो है वो प्रभुपाद जी से पहली बार कैसे मिले, उस समय क्या हुआ। तो पहली बार जब हावर्ड मिलते हैं प्रभुपाद जी से, वो अपने मित्रों से मिलने के लिए जाते रहते हैं। तो मित्रों से मिलने के लिए जाते रहते हैं, उस दौरान क्या होता है कि वो श्रील प्रभुपाद जी को टहलते हुए देखते हैं। तो हावर्ड क्या कहते हैं सुनिए। बौरी पार करने के बाद सेकंड एवेन्यू के ठीक पहले मैंने देखा कि स्वामी जी हंसमुख मुद्रा में फुटपाथ पर टहलते जा रहे हैं। वे अपना सिर उठाए हुए हैं और उनका हाथ माला की थैली में था। वे मुझे किसी बहुत परिचित चलचित्र के सुप्रसिद्ध अभिनेता जैसे लग रहे हैं। प्रभुपाद जी कोई मूवी के कोई हीरो लग रहे थे उनको। वे चिर युवा प्रतीत होते। वे सन्यासी की परंपरागत केसरिया वस्त्र और विचित्र सफेद नुकीली जूते पहने हुए थे। हस्टन की ओर जाते हुए वे मुझे ऐसे लगे मानो कोई अलादीन की चिराग से अकस्मात जिन्न निकल आया हो, है ना। तो कैसे लग रहे हैं कोई जिन्न, कि जब जिन्न निकलता है किसी बोतल से कैसे लगता है लोगों को, क्या लगता है? हमने कहानी सुनी है ना कि जिन्न निकलता, हमें लगता है सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी मेरी, इससे कुछ भी मांग लूंगा, है ना। तो प्रभुपाद जी एकदम आकर्षक लगे उनको। तो कहते हैं कि वो एक 26 वर्षीय विशाल युवक थे, हाइट अच्छी थी, और जब वो प्रभुपाद जी को देखे तो आगे जाने का प्लान उन्होंने त्याग दिया अपने मित्रों से, जो किसी फ्रेंड से मिलने जाते। प्रभुपाद जी के पास आकर्षित होकर आ गए और प्रभुपाद ने देखा हावर्ड को, तो दोनों रुक गए। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी से पूछे आप भारत से आए हैं? प्रभुपाद जी बोले हाँ, और तुम? तो हावर्ड कहते हैं हाँ, मैं भी भारत गया हुआ था, ऋषिकेश आदि जगह में घूम कर आया हूँ, मुझे आपको देखकर अच्छा लग रहा है ना।
इतनी भीड़ भाड़ थी, चारों तरफ गाड़ियां चल रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी को देखकर वो बोलते हैं मुझे इतना शांत लग रहा था जैसे कि मैं ऋषिकेश के नदी के किनारे खड़ा हूं, ऐसा लग रहा है। उनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी से बात करने के बाद मुझे और किसी से मिलने की इच्छा नहीं हुई। प्रभु कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि मेरा पुराना खोया हुआ मित्र मिल गया है ना। फिर वापस लौट आए अपने दूसरे मित्रों के पास जिनके साथ रहते थे, जैसे कीथ जो बाकी जाके कीर्तन स्वामी मने चक आदि लोगों से मिलने चले गए। तो प्रभुपाद जी ऐसे धीरे धीरे करके अनेक शिष्यों से मिले जो बाद में उनके अनुयायी बने। वैली थे, चक थे, हावर्ड थे, ये सबसे मिले और धीरे धीरे जब प्रभुपाद जी ने उनको इनवाइट किया कि हावर्ड से कहा कि आप अपने मित्रों को लेकर आना, मेरी क्लास होती है। उन्होंने उसके बारे में बताया, सोम बुध और शुक्रवार 7 बजे से 9 बजे सायंकाल में, क्या तुम अपने मित्रों को लाओगे? तो हावर्ड ने वादा किया कि हाँ, सोमवार की शाम के समय पक्का आऊंगा मैं। तो ऐसा बोल के गए और जब वो लेकर आए तो प्रभुपाद जी जब कीर्तन करने के लिए अपने शासन में बैठते थे तो सबसे पहले देखा उन्हें हावर्ड बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि तुम अपने मित्रों को लेकर आए कि नहीं आए हो? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। ठीक है। तब इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी एक एक व्यक्ति से मिलते, और प्रभुपाद जी का कोई अपना सेक्रेटरी भी नहीं था, उनका पर्सनल सर्वेंट नहीं था कि उनका छोटे, अभी प्रीचिंग करने के दौरान हमें कहीं भी हेल्प मिलता है, असिस्टेंट चाहिए होता है, लेकिन प्रभुपाद जी अकेले प्रचार कर रहे थे, कोई भी उनका हेल्प करने वाला नहीं था। ज्यादातर क्या होता है जब सेक्रेटरीज होते हैं किसी के साथ, कोई सन्यासी या कोई प्रचारक के साथ, तो कई चीजें फिल्टर होके आती हैं। मतलब जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो किसी का लेना देना नहीं आध्यात्मिक जीवन से, ऐसे लोग को आने नहीं दिया जाता है, उसके उत्तर दे देते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी के पास कोई सेक्रेटरी भी नहीं थे। तो एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलने आया और प्रभुपाद जी अपना लेखन कार्य करते और कोई भी आ जाता है मिलने के लिए कभी भी, प्रभुपाद जी अपनी लिखना बंद कर देते और उनके प्रश्नों को उत्तर देते। तो एक बार एक हिप्पी पूछता है, खूब LSD चढ़ा रखा था और प्रभुपाद जी के पास अटारी पर चढ़ गया, प्रभुपाद जी के सामने बैठ गया और बोलता है अभी इस समय मैं आपसे अधिक ऊंचाई पर हूं, क्योंकि LSD लिया हुआ है ना। और उसने घोषणा की कि मैं ईश्वर हूं। तो प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़ के कहा, सिर झुकाकर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे प्रीचिंग करने में। फिर उन्होंने कहा कि आप ईश्वर हैं, देखिए आपको बहुत सारा कार्य करना होगा, आप कृपया करके यहां से चले जाइए। तो ठीक है। तो वो चुपचाप उठे और चले गए वहां से। तो प्रभुपाद जी बड़े अच्छे से डील करते थे हर व्यक्ति से। तो इस प्रकार अजीब अजीब से लोग आते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं ऐसे स्त्री से विवाह करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा शुद्ध हो, पर जब तक कोई शुद्ध नहीं मिलता तब तक मैं वैश्य से काम चला रहा हूँ। ये ठीक मेरा विचार है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये विचार ठीक नहीं है। फिर प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं। ऐसे करके एक एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी मिलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को चिंता होने लगी कि अगर मैं सबसे से मिलता रहूंगा तो अपने प्रचार कार्य को बढ़ाऊंगा कैसे? मैं जो चाहता हूं कि पूरे विश्व में प्रचार हो, जैसे कि इच्छा है मेरे गुरु की, वो कैसे बढ़ाऊंगा? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा जब तक सोसाइटी नहीं बनेगी, जब तक कुछ लोग नहीं होंगे जिनको अलग अलग सेवाओं को मैं बांटूंगा, तब तक कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन अचानक से घोषणा की। तो प्रभुपाद जी अचानक से बोलते हैं, हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। तो सब हंस पड़े, क्योंकि पहला नाम था, किसी को समझ नहीं आया कि इस्कॉन क्या है। तो बावरी पे रहते हुए उन्होंने अपने सोसाइटी की संस्थापना के संबंध में कानूनी कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं इसका नाम रखूंगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसा बोला और ये नाम उन्होंने भारत में लिखे गए पत्रों में और विलेज वॉइस पत्रिका में भी प्रकट कर चुके थे ये नाम पहले से। और तभी उनके एक मित्र जो थे, जो वहां पर आते थे, वो बहुत ही परिचित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, ये जो नाम आप बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये नाम अच्छा रहेगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। और बार बार आग्रह करने लगे, किंतु प्रभुपाद ने कहा फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्यादा अच्छा रहेगा। गॉड या ईश्वर नाम जो अस्पष्ट है, जबकि कृष्ण यथार्थ और वैज्ञानिक है, क्योंकि कृष्ण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। और उन्होंने बोला कि जो ईश्वर कॉन्शियसनेस है या गॉड कॉन्शियसनेस जो है, वो जो है आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है। और
कम व्यक्तित्व है, वो किसी व्यक्ति को नहीं बताता है। गॉड जो है वो कई चीजों को बताता है, इम्पर्सनल फॉर्म भी हो सकता है, भगवान का परमात्मा भी हो सकते हैं, तो व्यक्तित्व को दर्शा नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण बोलना अच्छा रहेगा। तो लोग पूछेंगे ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों लिखा है, सोसाइटी अपनी बनी, कृष्णा कॉन्शियस क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें प्रचार करने का मौका भी मिलेगा, तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियस प्रभुपाद जी ने नाम रखा। और बताया कि ये जो शब्द मैंने लिया है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, ये शब्द मैंने 16वीं शताब्दी के रचित श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा बद्यावली से वाक्यांश से लिया है। कृष्ण भक्ति रस भाविता का अपने रूपांतरण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहना। जो लोग कृष्ण की भक्ति संपन्न करते हैं और उनके मधुर रस में निमग्न रहते हैं, वो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा करके श्री प्रभुपाद जी ने बताया। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जब कभी भी प्रचार होता है तो उसके लिए धन आता है, तो उसमें कई टैक्सेस देने होते हैं, कई नियम होते हैं, और अच्छे से प्रचार हो, पूरा सिस्टमाइज हो। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि किसी वकील से बात करनी पड़ेगी। तो अपने कई शिष्यों को बोले कि वकील ढूंढो। तो एक वकील को ढूंढा गया। वो स्टीफन गोल्डस्मिथ जो थे, वो एक यहूदी नवयुवक वकील था, जिसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जो पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था। आध्यात्मिक आंदोलन में रुचि रखता था। जब कॉल ने उसे प्रभुपाद की योजना के बारे में बताया, वो तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हो गया। तो 26 सेकंड एवेन्यू में प्रभुपाद से मिला और दोनों ने संस्था स्थापन, कर मुक्ति, प्रभुपाद की अप्रवसान स्थिति और कृष्ण भावनाव्रत के विषय में विचार विनिमय किया, डिस्कशन किया प्रॉपरली। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया गया झोल, जिसको लोग सूप बोलते थे, बंगाली में झोल कहते हैं, तो वो सूप जैसा था, वो पिया, वो बहुत पसंद आया। तो उन्हें और खुश होने लगा और धीरे धीरे क्लासेस में आने लगा, और सारा जितना भी पेपर वर्क था वो कर किया गया, और दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद जी के व्याख्यान में आ गया। अब देखिए जुलाई 11 तारीख को क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत एक्सपर्ट हैं, वो उस गोल्डस्मिथ जो प्रभु जी थे उनसे सेवा लेना चाहते थे, तो उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं और अपने प्रवचन में उसको जोड़ भी रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार लोग भगवत गीता को अभक्तिपूर्ण से व्याख्या करते हैं, भक्ति के बारे में नहीं बताते हैं भगवत गीता को, तो तोड़ मरोड़ के करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वकील भी ऐसे करते हैं। तो वकील थे ना सामने में बैठे हुए, तो प्रभुपाद जी वकील भी ऐसे करते हैं, और वो अपने उस तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीजों को गलत व्याख्या किस तरह की जाती है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे अध्यक्ष श्रीमान गोल्डस्मिथ के जानते हैं कि वकील टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, कि दक्ष वकील अपनी व्याख्याओं द्वारा किस तरह कई चीजें कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को उदाहरण बताते हैं, जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया टैक्स संबंधी कानून बनाया, और एक दक्ष वकील ने अपनी व्याख्या द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। जो नियम सरकार ने बनाया था उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। सरकार को फिर से एक नया कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया। अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को, जिसके लिए गीता का निर्माण हुआ था, नष्ट करने के नहीं करते हुए हैं, लेकिन अनाधिकृत व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं। अतः यह सब अनाधिकृत है। प्रभुपाद जी ऐसे मेंशन कर रहे हैं, और क्लास ओवर होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अच्छा श्रीमान गोल्डस्मिथ, आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्यादातर क्या बोला जाता है, एनी क्वेश्चन, कोई भी पूछना चाहते हो। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट करना है ना अभी। तो बोलते हैं, गोल्डस्मिथ आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए। तो श्री गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं, वहां एकत्रित लोगों की तरफ देखते हुए घोषणा करते हैं, बोलते हैं कि हमें इस्कॉन की संस्था स्थापित करने के लिए, आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम एक संस्था को पंजीकृत करना चाहते हैं, तो आप सब लोग का साथ चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पर, आप उनके पते भी ले सकते हो, सिग्नेचर भी करा सकते हो। तो प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट है, तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं अभी भी ले सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ आप ले सकते हैं, बिल तुम अपना पता दे सकते हो, रेफल तुम भी दे सकते हो, और तुम भी दे सकते हो, डॉन, राय, श्रीमान, ग्रीन, ये सब लोग हैं, अपना अपना पता दे दो और अपना अपना सिग्नेचर कर दो। तो जैसे ही क्लास ओवर होता है,
सभी लोग खड़े होते हैं। जैसे जैसे जो नाम लिखवाए थे सबके नाम पुकारे जा रहे हैं और सब लोग वकील के पास जाकर उसकी अटैची से पेपर निकाल कर सिग्नेचर करते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेते समझने के लिए, किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है पर देखते जा रहे हैं। और बोलते हैं कि किसी को नहीं पता था ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या होने वाला है, उसके प्रति कोई डेडिकेशन में नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था क्या चल रहा है। सोच के देखिए, आपको कोई लीगल पेपर में सिग्नेचर कराया जा रहा है, आपको पता नहीं क्या है। और वो ISKCON जिसमें आज हम लोग बैठे हैं उसमें जब लोग सिग्नेचर कर रहे थे तो उनको नहीं पता होने वाला था कि विश्व में ऐसी क्रांति आने वाली है, 650 मंदिर बनने वाले हैं, है ना। तो गोल्डस्मिथ को यथा आवश्यक संख्या में हस्ताक्षरकर्ता मिल गए। वे थोड़े से ऐसे लोग थे जो स्वामी जी से सहानुभूति तो रखते थे, उनकी सहायता के लिए जिनके मन में पर्याप्त सम्मान था। प्रथम न्यासी जो सिग्नेचर करने वाला, संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी होंगे, किसी एक को चेयरमैन बनाया जाता है। वो सबसे पहले व्यक्ति थे माइकल ग्रांट, जो जाके आगे जाके वो महान सन्यासी बने। कौन बने? मुकुंद गोस्वामी महाराज। तो जो आगे जाकर सिग्नेचर कर देते, अपना पता लिख देते। उनकी जो महिला मित्र गर्लफ्रेंड थी जेन, जो जानकी माता जी बनी, फिर आके जेम्स ग्रीन, ये 3 लोग ने पहले सिग्नेचर किए। उसके बाद धीरे धीरे सब सिग्नेचर करने लगे। कानून के अनुसार न्यासियों का एक दूसरा दल जो साल के दूसरे साल में कार्यभार संभालेगा, वो पॉल गार्डनर थे, राय और डॉन थे। तीसरे वर्ष में कॉल एर्जेंस, बिल एप्स्टीन और रेफल थे। तो उनमें से कोई भी ठीक ठीक ये नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानूनी आकार में टंकित पृष्ठों का आशय क्या है, वो पेपर्स क्या है, किसी को नहीं पता, सिवाय इसके कि स्वामी जी कोई सोसाइटी बना रहे हैं, बस इतने पता था। क्यों बना रहे हैं? लोगों ने बताया, कर छूट मिलेगा, टैक्सेस छूट मिलेगी, और जो धन राशि आएगा उसे हम लोग को हेल्प करने का एक संस्था कोई दान करता है, और अन्य लाभों के लिए, बस इतना ही, और किसी कुछ नहीं पता। ये नहीं पता था कि दान कहां से आएगा, कैसे संस्था बढ़ेगी, कुछ नहीं पता। तो प्रभुपाद जी ने उनको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को हमें बढ़ाने के लिए ये जो समय चल रहा है, इस समय में सोसाइटी बनाना बहुत जरूरी है, और कलयुग की जो धारा है उसके विपरीत चलने के लिए ऐसे चीजों की आवश्यकता होगी। तो प्रभुपाद जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि इसका शुभारंभ हो गया है, और उसके बाद पढ़कर सुनाया कि जो 7 उद्देश्य हैं इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, वो क्या है। तो वो हम सबको पता होना चाहिए। हम में से किसी को याद है 7 पर्पसेस? किसी को याद नहीं? तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे पास, मैं ये लिख कर भी लाया हूँ, ये प्रिंट आउट है हमारे पास, ये हम बांट सकते हैं, और इसको एक याद करने का तरीका हमने इसमें निकाला है ताकि आप इसको ढंग से याद कर सकें इजीली। ये पीछे सीनियर्स को पहले बांट दीजिए। तो इसमें बताया गया कि किस प्रकार, मैं पढ़ लेता हूं, तब तक आप इसको आगे डिस्कस कर लीजिएगा। पहला है, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्य में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। तो यहां पर पहला जो है वो है कि जितने भी मानव समाज में लोग रह रहे हैं उन तक ये आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाना। कैसे पहुंचाना? सिस्टमेटिकली, है ना। तो प्रचार करना, और ताकि वो समझ सकें कि जो मानव जीवन है उसके मूल्यों को, असंतुलन को रोक सके, ताकि एकता है और शांति है। दूसरा है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना, जैसा कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में बताया गया है। चौथा है संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाकर इस सदस्य और संपूर्ण मानवता की इस धारणा को विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है। यानी आपस में रिलेशंस अच्छे रखकर कृष्ण एक साथ कृष्ण भावनामृत को अपनाना। तो आप देख रहे हैं ये जो आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो पहला जो है उसमें क्या है, सिस्टमेटिकली प्रोपेगेट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बड़े अच्छी तरीके से
सुव्यवस्थित तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार करना। तो इसको हमने बनाया इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, सबको नॉलेज देना ताकि शांति और सुख मिल सके सब लोग, है ना, एकता आ जाए इसके अंदर। फिर दूसरा जो है प्रचार करना है कृष्ण भावनामृत का, तो उसको प्रीचिंग हमने दिया है। और तीसरा जो है इसमें बताएं कि किस प्रकार जो संघ के सदस्य एक दूसरे से करीब आकर भगवत भक्ति करें और समझ सके हम जो है भगवान के अंश हैं, तो ये रिलेशनशिप पर है। और लास्ट में डी है, इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है उस पर है कि संकीर्तन आंदोलन को कैसे फैलाया जाए, नाम के रूप सामूहिक ज्ञान हो, ये शिक्षा देना, यानी हो गया कीर्तन। और फिफ्थ है ये सदस्य और संपूर्ण मानव समाज के लिए कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना। जो धाम ऑलरेडी है भगवान की लीलाओं जहाँ की है उसको स्थापित करना, उस धाम को डेवलप करना, तो अबोर्ड ऑफ कृष्णा। और सिक्स्थ है सादा जीवन उच्च विचार, सरलता और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देना, फॉर्म कम्युनिटी आदि, तो इसमें सिंपलर लाइफ ये बताएंगे। और लास्ट में है कि ये 6-7 के साथ जो है इनको उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रंथों का वितरण करना, क्योंकि लोग आपकी बात कितना सुनेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सुनेंगे। तो हो गया लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखेंगे इनको अगर हम लोग सातों को मिला दें तो एक शिल्पकार नाम आता है, शिल्पकार ऊपर लिखा है। तो इस्कॉन का जो उद्देश्य है वो एक शिल्पकार की वो समान है। शिल्पकार का क्या अर्थ होता है कि आप देखते हैं कि एक मूर्ति एक पत्थर का टुकड़ा होता है और एक अच्छा शिल्पकार क्या करता है, उसमें से अनवांटेड जो मटेरियल है उसको निकाल लेता है, काट कर निकाल लेता है, चीजल से हथौड़ी से मार कर और निकाल लेता है। तो इस्कॉन भी एक संस्था ऐसी है जिसके उद्देश्य ये है कि समाज में जो आवश्यकता से अधिक चीजें हैं या व्यवस्था जो अव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित नहीं है, उस सबको सिस्टमाइज करना, कृष्ण की ओर सबको ले जाना, ये उद्देश्य है। और इसलिए अगर इसको याद करने का तरीका है तो अगर शिल्पकार करें, शिल्प से एस से क्या बनेगा, सिंपलर लाइफ, आई से इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, एल से लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन, पी से प्रीचिंग, के से कीर्तन, ए से अबाउट ऑफ कृष्णा, आर से रिलेशनशिप। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ताकि आसानी से हमें इसका फायदा हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कोई नए धर्म का स्थापना नहीं हुआ, इस्कॉन की स्थापना हुई, बल्कि ये एक ऐसे शाश्वत प्रचार का पौधा है जो संकीर्तन नाम से विख्यात है। और पूर्व में ये था, यानी इस भारत में था, पश्चिम में इसको प्रत्यारोपित किया जा रहा है ना। तो बताते हैं कि संघ के लोग इसमें इकट्ठे होंगे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे और समस्त मानव समाज जो होगा इकट्ठे होकर चलेगा। तो इसमें मुख्य बात जो है, 7वां उद्देश्य जो है, तो प्रभुपाद जी यहाँ लीलामृत पे लिखा भी है, इन सभी 6 उद्देश्यों की पूर्ति 7वें उद्देश्य पूरी होगी। 7वां उद्देश्य क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना। तो उस समय जितने लोग बैठे हुए थे उनको नहीं पता था कि प्रभुपाद जी क्या करने वाले हैं और कैसे प्रभुपाद जी इस संस्था को कहाँ तक ले जाने वाले हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको ये लगता है कि ये जो 26 सेकंड एवेन्यू जहाँ पर संस्था का निर्माण हुआ है, ये मैचलेस गिफ्ट का जो शॉप है, लोग उसको सोचते थे कि कोई व्यक्ति ने एक स्थान खरीद लिया, छोटा सा स्थान है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये स्थान साधारण नहीं है। उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि मेरे गुरुदेव जब दिल्ली बॉम्बे जैसे स्थानों में प्रीचिंग के लिए निकले थे तो लोगों ने कहा कि दिल्ली बॉम्बे में क्यों प्रीचिंग कर रहे हो, गांव में प्रचार करो या धाम में रह के प्रचार करो। तो उन्होंने बताया था कि जहां भी कृष्ण भक्ति के प्रचार होता है वो स्थान क्या बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। तो इसलिए ये लोअर ईस्ट साइड में स्थान जो है जहां प्रीचिंग कर रहे हैं, 26 सेकंड एवेन्यू, मैचलेस गिफ्ट जो है ये भी वैकुंठ है। हाँ, ये कोई छोटा सा पूजा स्थल नहीं है, न्यूयॉर्क का एक स्टोर फ्रंट नहीं है। तो ये क्या है, एक समग्र मानव समाज का यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है। क्योंकि ये सोसाइटी जो है, सोसाइटी कोई बिल्डिंग नहीं है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी मतलब समाज होता है, और समाज यहाँ पर सामाजिक प्राणी यानी मानव रहते हैं, है ना। तो इस्कॉन के जो फॉलोअर्स हैं वो जहां जहां भी रह रहे हैं वो एक प्रकार से इस्कॉन है। कई बार हमें सुनने मिलता है, कई बार भक्त लोग हम सब जब प्रचार के लिए जाते हैं
तो सोचते हैं कि हम ये इस्कॉन से बाहर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। नहीं, जो भी प्रचार कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा है वो खुद इस्कॉन है, क्योंकि वो जो करता है उसी को इस्कॉन समझा जाता है। जैसे कि देखा गया है परिवार में, जब हस्बैंड डिवोटी है, वाइफ नहीं है, वाइफ डिवोटी हस्बैंड नहीं है, तो जब वो घर जाते हैं और व्यवहार करते हैं तो क्या दिखाते हैं कि हम एडवांस हैं, और घर वालों से डील करते समय क्या बोलते हैं, तुम कर्मी कहीं के, हम लोग को देखो हम शुद्ध भक्त बन गए हैं इस्कॉन में जाकर। तो ऐसा जब एक्सप्रेस करते हैं तो जो व्यक्ति इस्कॉन नहीं आया है वो क्या सोचता है, इस्कॉन में यही सिखाया जाता है। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी को इस्कॉन को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी बाहर जाते हैं। तो इस चेतना से हमें जाना चाहिए। एक व्यक्ति प्रभु जी मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं इस्कॉन में जाता हूँ, तो मेरी वाइफ जो है वो बहुत सालों से आ रही है, मैं अभी भी जाना शुरू हुआ हूँ और मेरी अक्सर लड़ाई होती है उनके साथ। तो मैंने पूछा किस विषय पर होती है, तो कहती हैं, वो बता रहे हैं, प्रभु जी बोलते हैं कि वो मेरी वाइफ ने कहा कि मेरी दीक्षा हो गई है, मेरा नाम जो है गोलोक की चार्ट पे आ गया है, मैं गोलोक जाने वाली हूँ, तुम कर्मी यहीं रहोगे। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो मैं बोलते हैं कि ऐसा कुछ है क्या सिस्टम में कि इस लिस्ट में नाम लिखवाने से हमें गोलोक धाम जाने मिलेगा। तो मैंने समझा इस बात को कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जब जो हम बोलते हैं वही लोग समझते हैं कि इस्कॉन के लोग हैं। तो बहुत सोच समझ के हमें सोसाइटी में, जब सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो बोलना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा कर रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं, लोग आपको यही बोलेंगे कि आप इस्कॉन के हैं, क्या इस्कॉन में यही सिखाते हैं। तो छोटा बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया। माँ बाप नहीं सिखाते गलत काम, लेकिन बदनामी माँ बाप की होती है ना। तो उसी प्रकार एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम थोड़ी भी छोटी सी कोई गलती करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन बदनाम होगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जिसका नींव आज ही के दिन न्यूयॉर्क में रखा था, उसके उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए ध्यान से अपने जीवन को जिए, एक अच्छा आदर्श जीवन जीने का प्रयास करें। तो श्रील प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं, ये लोकातीत है, ये इस्कॉन जो है ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये भी वैकुंठ में निवास कर रहा है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि कलयुग में सतयुग जैसा या अच्छा जीवन, वैकुंठ जैसा जीवन कैसे जिएंगे। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, उमस है, बहुत सफोकेशन और गर्मी का फील होता है, लेकिन किसी बंद कमरे में एक एसी चला दिया जाता है तो उस कमरे में ठंड लगने लगती है। गर्मी के दिनों में एक कमरे के अंदर ठंड लग रहा है, क्यों लग रहा है कि किसी मशीन के द्वारा, किसी तरीके से हमने क्या कर दिया, किसी उपाय से उस स्थान को, मौसम को बदल दिया। ठीक उसी प्रकार आप एसी को पूरे खुले जगह में लगाकर ठंडा नहीं कर सकते, एक लूप चाहिए, एक क्लोज स्थान चाहिए, सर्किट चाहिए जहां पर आप कर सकते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार इस संस्था के अंदर जैसे एक मंदिर का निर्माण हुआ है, सोसाइटी का निर्माण हुआ है, तो संस्था के अंदर या सेंटर्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैकुंठ का वातावरण निर्माण कर सकते हैं, एक साथ उन नियमों का पालन करके जो इस संस्था के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। उनको जब पालन करेंगे तो एक लूप में ही, एक स्थान में ही वैकुंठ बन जाएगा। जब हम बाहर जाते हैं तो उसका अनुभव होता है, जब भक्त प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो अनुभव होता है कि हम लोग कहीं और आ गए। दिल्ली सचमुच एक नरक लगता है ना। तो वापस आते हैं मंदिर में तो ऐसा लगता है कि सचमुच वैकुंठ है। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ बता रहे हैं कि ये छोटा सा स्थान है जहाँ पर निर्माण हुआ है, एक इस्कॉन का निर्माण हुआ है। इसका उद्देश्य है कि समग्र मानव समाज इसके अंदर रहे और जहाँ पर जाति धर्म का भेदभाव नहीं होगा, पूरा संसार इसमें अपना शेल्टर ले सकता है, शरण ले सकता है। हाँ, अभी स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, विपन्न है, किंतु प्रभुपाद की दृष्टि में वो कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का पवित्र धाम था। तो 26 सेकंड एवेन्यू को जहाँ पर न्यूयॉर्क में स्थापना हुई, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को समर्पित एक दिव्य धाम है ना, पवित्र धाम है। तो ये विश्व का उस समय मुख्यालय था। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का मुख्यालय उसको बनाया और वहीं पर ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स छपाई के लिए भी प्लान किया जा रहा था और भगवान का पवित्र स्थल भी वही था और सब कुछ वही था, ताकि यहाँ से सेना का निर्माण हो और सेना धीरे धीरे निकल कर
नाम संकीर्तन करेगी सड़कों पर, और समस्त ब्रह्मांड में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जो यहाँ स्थापित हो रहा है कृष्ण भावनामृत प्रसार किया जाएगा। तो ये इस प्रकार यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना किया इस्कॉन का। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने स्थापना करने के पूर्व ही स्थान के बारे में बता दिया था कि इतने सारे छोटा मंदिर बन रहा है, लेकिन पहले एक व्यक्ति से मिलकर क्या किए थे कि सिर्फ समय का अभाव है, भेद है। आज समय वो नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास बहुत सैकड़ों मंदिर होंगे, बहुत सारे भक्त होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे। तो आज 650 से ज़्यादा मंदिर हैं। अगर छोटे छोटे सेंटर को गिना जाए, जैसे दिल्ली में ही मेरे ख्याल से 100-150 सेंटर हैं, दिल्ली के अंदर ही छोटे छोटे सेंटर, और बेसेस ही मेरे ख्याल से 70 के आसपास बेसेस हैं यहाँ पर। तो दिल्ली के अंदर ही 14 बड़े बड़े मंदिर है देखा जाए, है ना, और इतनी सारी सेंटर्स हैं, इतने सारे बेसेस हैं। तो सोच के देखिए, और भी जब पूरे विश्व को मिलाया जाएगा सेंटर्स को, तो मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार के ऊपर से चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने सिर्फ 40 रुपए से 108 मंदिर को कन्वर्ट किया। कितना प्लानिंग है सोचिए, 40 रुपए लेके गए और 108 मंदिर को निर्माण किया, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी ने वहीं पर जीबीसी का निर्माण किया, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय में, उनके समय में क्या हुआ था कि जीबीसी का निर्माण नहीं करने से एक एक मंदिर को एक एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। तो चाहते थे कि इस्कॉन में जो उद्देश्य वो पूरा हो, इसके लिए जीबीसी का निर्माण करना जरूरी था। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अगर सेंटर रहेंगे तो इस्कॉन हमेशा प्रचार का कार्य करेगा, क्योंकि सब अपने गुरु अपने अपने कार्य में लग जाएंगे, अपने ही प्रचार में लग जाएंगे, या शिष्य अपने गुरु के प्रचार में लग जाएंगे, तो इस्कॉन की संस्था नहीं चलेगी। तो इसलिए जीबीसी का निर्माण हुआ, और एक मैचलेस गिफ्ट छोटी से सेंटर से, एक छोटे से मंदिर से एक अद्भुत मंदिर आने वाला है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, है ना। तो सोचिए, प्रभुपाद जी ने सबका प्लान किया। प्रभुपाद जी ने सिर्फ मैचलेस गिफ्ट का प्लान नहीं किया था छोटे से सेंटर का, प्रभुपाद जी सारा प्लान करके गए थे, एक अद्भुत मंदिर का भी प्लान किया था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, अक्सर सीनियर डिवोटीज भी बताते हैं, हमारे सन्यासी और जीबीसी भी बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को जो लीलामृत है वो हम सबको पढ़ना चाहिए। तो हमने तो कोशिश किया, हमारे जितने सेवाएं हमारे जितने सेंटर्स में हैं, जितने बेसिस पे हैं, हम वहाँ पर नियम बना दिए, रोज सुबह 1 पेज लीलामृत पढ़ते हैं, कंपलसरी कर दिया है। अगर आप लीलामृत नहीं पढ़ोगे तो वो बेस बंद कर देंगे, नियम बना दिया है। तो सारे बेस में लीलामृत पढ़ते हैं, और सबको प्रभुपाद जी से इतनी आसक्ति बढ़ रही है कि पूछो मत। तो ये आप जहाँ भी जुड़े हैं, आप घर में भी हैं, कहीं भी हैं, लीलामृत जरूर रखिए, क्योंकि अगर आपने लीलामृत नहीं पढ़ा है तो इस्कॉन को नहीं समझ सकते, प्रभुपाद जी को नहीं समझ सकते। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे इस्कॉन में, आप इस्कॉन का एक मूल उद्देश्य, अगर 7 उद्देश्य को पढ़ेंगे, इसमें देने के बारे में बताया, दिया जाता है, गिविंग इज लव। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम को बांटना चाहिए। तो कभी कभी संसार में लोग सब चाहते हैं कि मुझे मिले, पर इस्कॉन के भक्त लोग क्या चाहते हैं, सबको दें। एक व्यक्ति था, वो भगवान से बार बार प्रार्थना करता कि भगवान मुझे अगला जन्म ऐसे देना कि लोग सिर्फ मुझे दें, मैं किसी को कुछ ना दूं। ऐसा कई लोग मांगते हैं ऐसा। दूसरा व्यक्ति था, वो बोलता भगवान मुझे ऐसा जीवन देना कि लोगों को मैं सिर्फ दूं, मुझे कोई देने की जरूरत, मुझे कोई ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ दूं। तो जो पहला व्यक्ति था, क्या डिमांड किया था, लोग मुझे दें, मैं किसी को ना दूं। अगले जीवन में भिखारी बना। तो भिखारी को लोग देते रहते हैं। भिखारी के पास देने के लिए कुछ होता है? कोई भिखारी से कोई लोन मांगता है क्या? कोई पैसे मांगता है? तो वो मांगा था बड़ा सोच समझ के, तो भगवान ने क्या बनाया उसको, भिखारी। और दूसरा व्यक्ति क्या मांगा, भगवान मैं सबको दूं, और सबको देने के लिए भगवान उसकी झोली को भरना पड़ेगा। जब झोली भरेगी तभी तो किसी को देंगे। ऐसी जब हम लोग सोचते हैं कि हम सबको कृष्ण देंगे, सबको हरि नाम देंगे, सबको प्रचार करेंगे, प्रभुपाद से जोड़ेंगे, इस्कॉन से जोड़ेंगे, जब सोचते हैं तो भगवान आपके स्वास्थ्य का, आपकी बुद्धि का, आपकी चेतना का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। भगवान नहीं, भगवान से लेकर आज तक जितने भी आचार्य हुए हैं परंपरा में, वो सब हमको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो पूरी परंपरा ने किया है। तो इसलिए ये जो इस्कॉन का उद्देश्य है, तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं, तो वो हमें पूरा करने के लिए ये आज की स्थापना दिवस है, तो
हमने विचार बनाना चाहिए कि श्री प्रभुपाद जी ने जिस उद्देश्य से ये स्थापना की थी इस्कॉन की, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात लगे रहे। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न या कुछ? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, और आज के दिन जो इस्कॉन जो संस्था है इसकी स्थापना हुई, पंजीकरण हुआ था। तो प्रभुपाद ने पहले भी प्रयास किया था इस लीग ऑफ डिवोटी के नाम से इसको जो है रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुए। और प्रभुपाद को पता था कि उनकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। उनकी जन्म कुंडली में लिखा है कि ये बालक जब 70 वर्ष का होगा तब ये ऐसे घर का निर्माण करेगा जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। तो प्रभुपाद को पता था, लेकिन तो भी उनका उत्साह इतना था कि वो समय से पहले ही उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब तक समय नहीं आया तो सफलता नहीं प्राप्त हुई। और आज का जो दिन है, आज के दिन प्रभुपाद 70 वर्ष के हो जाते हैं। क्यों? आज का जो दिन है फिर 29 दिन के बाद उनका जन्मदिन आता है। 70 साल में 29 दिन कम है, 29 दिन कम है 70 साल, तो 70 साल ही समझो। तो 70 साल में ही जो है ये कार्य होना, जन्म कुंडली में जो लिखा है कितना मतलब एक्यूरेट, कितना सही है कि बालक जब 70 वर्ष का होगा तब ये ऐसे घर का निर्माण करेगा। तो ये घर है, इस्कॉन जो बनाया है प्रभुपाद ने, ये घर है, सोसाइटी कहते हैं, संस्था। तो पूरी दुनिया रह सकती है। तो यहाँ कोई मतलब ऐसा भेद नहीं है कि कोई भारतीय हो या कोई अमरीकी हो या कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा कोई भेद नहीं है इसमें, पूरी दुनिया इसमें रह सकती है। तो प्रभुपाद ने इस तरह का घर बनाया है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रभुपाद को विश्वास था कि ये बनेगा। आज के दिन जब प्रभुपाद ने बनाया ये इस्कॉन की जो पंजीकरण किया था, उस समय कोई भी दीक्षित भक्त भी नहीं था प्रभुपाद के, किसी को दीक्षा नहीं दी थी। जो लोग आते थे तो आते थे, चले जाते थे। कोई प्रभुपाद के, जैसे प्रभु जी ने बताया कि कोई सेक्रेटरी भी नहीं था, कोई भी प्रभुपाद के साथ में नहीं था। और प्रभुपाद में जो है इतनी जो है चालाकी थी कि किसी को सूचना नहीं दी उन्होंने। और जैसे रोज गीता का प्रवचन दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रवचन के बीच में ही और मिस्टर गोल्ड स्मिथ को जो है खड़ा कर दिया कि आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। और पहले से सब सोच लिया था, मतलब सब कुछ पहले से निश्चित कर लिया था, प्लानिंग कर ली थी पूरी। और मिस्टर गोल्ड स्मिथ जो है जब कहा कि मुझे कोई हस्ताक्षर चाहिए, प्रबंध कर ले लो इनके। अगर पहले से कहते हस्ताक्षर करना तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों हस्ताक्षर करूं, उससे क्या होगा, कहीं मैं फंस ना जाऊं, ये ना हो जाऊं, वो ना। लेकिन प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, प्रवचन से जो है सबको सम्मोहित कर लिया। और फिर जो है दे दो, अपना पता दे दो, अपना नाम दे दो। तो इस तरह से जो है, और वो लोग भी सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रभुपाद ने इस तरह से नहीं कहा कि आपकी कोई जिम्मेदारी होगी, आपका हस्ताक्षर आपको देना है, अपना पता देना है। और इतने से अगर जो है काम चले, स्वामी जी का काम चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। किसी ने नहीं सोचा था कि भक्त बनेंगे आगे चल करके, पूरी दुनिया में भक्त बनेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। नहीं, प्रभुपाद की दृष्टि ऐसी थी। हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में थे तो टॉम्किन स्क्वायर पार्क जैसे बहुत छोटे छोटे, वहाँ बहुत छोटे तो नहीं, वहाँ तो हर चीज बहुत बड़ी होती है, बड़े बड़े पार्क बहुत हैं। तो एक पार्क में एक पत्रकार पहले मिला था प्रभुपाद जी से, तो उसने पूछा स्वामी जी आप इंडिया से आए हैं? बोले हाँ। बोले आपके पास कुछ डिवोटी हैं? कहा आई हैव हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज। कहीं मंदिर भी हैं? कहीं यस आई हैव मेनी हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, बट वेयर आर दे? से टाइम हैज क्रिएटेड अ गैप बिटवीन मी एंड माय अचीवमेंट। तो उनके पास विजन तो था, ऐसा नहीं था वो प्लानिंग ऐसे वहां घूमने के लिए नहीं गए थे अमेरिका में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पहले ही शब्द में उन्हें कहा था गो टू इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। तो इसीलिए जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो झांसी में प्रयास कर रहे थे तो इसलिए भी सफल नहीं हुआ क्योंकि वो उनके गुरु का वचन नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनसे कहा था इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में पढ़े लिखे नौजवान हो। तो जब उस पे आए उस ट्रैक पर चालू हो गया सब सिस्टम। तो इसलिए प्रभुपाद जी का प्लानिंग पहले से ही था सब।
और वो बहुत अच्छी जगह है। अभी भी अल्फ्रेड फोर्ड जो अम्बरीश प्रभु हैं, उन्होंने 22nd जो 6th वो है ना 26 सेकेंड एवेन्यू, उसको खरीद लिया है। तब तो इस्कॉन की संपत्ति है। प्रभुपाद जी ने तो खरीदा नहीं था, वो तो किराए पर रहते थे ना, $5 का किराया दिया करते थे, तो किराया मेंटेन किया था। लेकिन अम्बरीश प्रभु ने फिर उसको खरीद ही दिया, अभी इस्कॉन के नाम से है। श्रील प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद लीला अमृत की, निताय गौर प्रेमानंदे।